Suddenly as a new entry into this industry I felt lost at some time. तो ये बहुत सारी चीजें मेरी आंखें खोल रही हैं धीरे धीरे। ये सब चीजों में मैं विश्वास करता नहीं था। मेरे बारे में कुछ लिखो, आर्टिकल लिखो, कुछ रूमर बनाओ, कुछ मैं रेलेवेंट बनना चाहता हूँ, रेलेवेंट। हाँ, एक मेरा पैशन प्रोजेक्ट है जो कि मैं बहुत समय से मना रहा हूँ कि वो हो जाए। तो मैं बचूंगा ही नहीं ना, मैं हर जगह मेरे थॉट्स बदलते रहेंगे, मेरा मोल्ड होता रहेगा सब कुछ। फिर ऐसा नहीं होगी मैं घर आऊँ एक दिन 5-10 साल बाद और मेरे माँ बाप मुझे पहचाने ही नहीं। आपकी सारी फैंस ये पूछना चाहती है, इज ही सिंगल और टेकन? यार ये वाला मैं कंफर्टेबल नहीं होता सिंगल ये फैंस बताने है में अपना यार, बता रिलेशन। दूं। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Hello, Siddhant. High five for a fabulous performance. Thank you so much, Pooja. Thank you so much. But you were absolutely fabulous as Imad, and I actually thought that it was a very orthobacked role. In the sense, there's so many layers to this man. He's such a Yeah. complex character, but that cockshop personality that he has, ऐसा लगता कि मस्करा है. What was it like when he came to you on paper, and then when you translated him on screen? Well, it was quite challenging, to be honest. When I read the script, and I was like, yeah, I could relate to Neil's character more, and Anna's journey more. But Imad was almost like stepping in the dark, because I'm playing a stand-up comedian, and then what happens in the end, also, it has to be layered very perfectly, or it could have gone very, very wrong. So I took up that challenge. I took up that risk because I know Arjun since Gully Boy days. He was Zoya's DA. So the inception of the idea happened when I was there. So he sent me the script. Initially, he wanted me to play Neil because of the obvious reasons. Because body banani hai, I come from that humble background, so I'd be able to portray it more. So he actually had sent me the script for Neil's part, which Adarsh plays, because he's like, yeah, I mean, he's playing this bodybuilder, right? And I was huge in Gully Boy, and that was the perception. So he's like, yeah, you'll fit the part perfectly. मैंने पढ़ा, मैंने बोला यार ये पार्ट कमाल है, आई रिलेट टू इट द मोस्ट। और दैट्स व्हाई, मतलब ये तो मैं कर लूंगा यार, मैं बॉडी बना लूंगा और ये पार्ट भी मैं कर लूंगा, एंड ऑल्सो द थिंग इज, द परसेप्शन आई वांटेड टू ब्रेक, आई वांटेड टू डू समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली फार अवे फ्रॉम मी। So then I was like, यार I want to do इमाद। I was like, इमाद के लिए तो पता नहीं, मतलब but I was like, trust me, let me just try, let's just so I think we spoke to Zoya, and Zoya was very confident. It's like, yeah, he can pull off Imad very well. And that's when it happened. And but honestly, my still my favorite character is Neil, and the journey of Ahana is so much so relatable to everybody. But इमाद इज फार 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 अवे, मतलब कहीं दूर दूर से ना मैं, मतलब ऐसी मेरी लाइफ रही है ना, मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडियन था। जो भी चीजें होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए एक डिस्कवरी थी। तो उसमें मुझे मजा आया कि मुझे लगा यार ये तो मैं शायद कर लूं, निभा लूं। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, इनफैक्ट निभाना वो भी बहुत मुश्किल था नील का। लेकिन मुझे लग रहा था ये लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे शायद कि हाँ, मतलब इसके लिए तो, मतलब ये इट कम्स इजी टू हिम। बट फॉर दिस कैरेक्टर आई वाज लाइक, यार ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एंड दिस नीड्स, ये बड़ा पोएटिक रोल है। आई फेल्ट इट्स अ वेरी पोएटिक रोल, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी टू इट द मोस्ट। एंड आई वाज वेरी नर्वस, एंड यस, बट अर्जुन काइंड बीइंग द फ्रेंड एंड द डायरेक्टर ही इज, ही टुक मी ऑन द जर्नी। मेरी उंगली पकड़ी उसने पूरा, धीरे 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 ही मेड मी यूज टू द स्टैंड अप गिग्स। I imagined myself, what if I was a stand-up comedian? So the whole process happened. Sapan came on board. So yeah, he just made it easy for me, actually. But the thing is, I know you have a wacky sense of humor. I loved Imad's lines. The lines were so clever. And you also write. So, Yeah. कहीं अपना कुछ इनपुट आया था of सिद्धांत, थोड़ा uh, सा? मतलब देखिए, मेरे लिए इनपुट ये था कि इस कैरेक्टर को ऐसे इमेजिन करूं मैं कि ये, अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन होता, तो जैसे गली बॉय वाला जो अप्रोच था कि अगर मैं रैपर होता तो मैं कैसा होता, तो मैं लिखना शुरू कर चुका था रैप गली बॉय के टाइम। सेम यहाँ पे भी हुआ। मैं स्टैंड अप सेट्स, मैंने बहुत सारे स्टैंड अप सेट्स लिखे हैं कि अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन होता तो मेरा अंदाज क्या होता, मैं कहाँ किस जगह पे रुकता, क्या मेरा वो एक तकिया का नाम होता, कहाँ, ये सारी चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा ये चीजें कर रहा था, काफी स्टैंड अप की वीडियोस देख रहा था। जाकिर मेरे खास फेवरेट हैं। सपन मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत सारे जी। स्टैंड अप की वीडियोस देख रहा था, मुझे लगा यार बहुत मुश्किल है ये याद तो नहीं होंगी लाइंस ये सारी।
इसको ना ऐसे करना पड़ेगा कि मान लो अगर मैं होता तो क्या होता। तो फिर मैं सपन के साथ बैठा, डेफिनेटली सारा जितने भी जोक्स और लैंडिंग थे सपन की थे, बट मेरे थोड़े थोड़े बहुत कम इनपुट्स आते थे कि अगर सपन में इसको ऐसे ना बोल के ऐसे बोलूं या इसको बाद में बोल दूं तो वो सारे इनपुट्स विच सपन वाज वेरी जेनरस टू काइंड ऑफ अलाउ मी टू डू इट, एंड सो वाज अर्जुन। सो हाँ, थोड़ा बहुत इनपुट्स आप कह सकते हैं कि था, नहीं तो वो फिर अपना नहीं लगता ना, फिर वो याद किया हुआ लगता। तो But you थोड़ा। once again, you were fabulous, and you actually came out as one of my favorite characters because I know Neil's journey and Ahana या for a woman, Ahana resonated for me as a woman, and Neil's journey as someone trying to make it in a या society and industry that's not his. That I totally get. But Imad was just out of the blue. पर एक और बात बताओ, हसल से हासिल जो आपका था वो मैंने बोरो जी। कर दिया अपनी लाइफ के लिए, आपने अब चेंज कर दिया है। अब नो मोर हसल के हसल चले जा रही है। नहीं नहीं, वो आपका हो गया ना, तो मैं कहाँ से वो यूज करूं। मैंने आपको, आपके लिए वो चीज नहीं, ऐसा नहीं है। असल से असल गायब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगा कि वो एक ऐसी चीज है जो कि मेरे बहुत करीब है, और उसको बताना या लिखना, इनफैक्ट एक साल मेरे लिए काफी, कह सकते हैं बहुत ही एनलाइटमेंट भरा रहा है। जब फोन बूथ नहीं चली मैं बहुत लो हो गया था, क्योंकि एंड मैं जब से आया हूँ तब से मैं थिएट्रिकल ग्लोरी के लिए ही वेट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स माई ड्रीम, दैट्स माई बिगेस्ट ड्रीम। और गली बॉय के टाइम हुआ, उसके बाद फिर पैंडेमिक आ गया, और एज अ न्यू कमर बहुत लोग हैं कि जो आप पे इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सिनेमा की परिभाषा बदल गई, साउथ वाली फिल्में आने लगी, एक्शन बिग पैक मेगा स्टार्स कम होने लगे, एंड सडनली एज अ न्यू एंट्री इनटू दिस इंडस्ट्री आई फेल्ट लॉस्ट एट सम टाइम, कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मैं करूँ तो करूँ क्या, और जो जो स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो शायद उतनी एक्साइटिंग नहीं थी। सो फोन बूथ के बाद आई टुक दैट ईयर ऑन पर्पस। मैंने काफी थोड़ा सा मतलब इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं उसको, वो किया मैंने। मैं बैठा, मैंने सोचा, तब मैं खो गया शूट कर रहा था, बिकॉज वो मैंने पहले ही साइन कर ली थी। तो तब मुझे लगा कि यार आई नीड सम पर्सपेक्टिव इन लाइफ, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं कहीं खाली भी हो गया हूँ इस भाग दौड़ के चक्कर में। जब से गली बॉय आई है मैं बैक टू बैक काम करे जा रहा था, पैंडेमिक में भी मैं गहराइयाँ शूट कर रहा था, तो मुझे लगा मैं थोड़ा खाली सा हो गया हूँ, और थोड़ा ये देखते हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अभी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वो एक साल मैंने लिया, और उसी में मैंने, मुझे लगा कि ये हासिल है से हासिल बड़ा विशिष्ट टर्म है, बड़ा ही लगता है कि मतलब गो फॉर इट वाला टर्म है, बट इट्स मोर टू डू विथ हासिल नहीं करना है मुझे। अब मुझे उससे भी ज्यादा कुछ करना है। मुझे अब मुकाम एक ऐसा बनाना है, या ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जिसको हासिल नहीं करना, वो बस होना चाहिए। उसे पाना नहीं है, उसे बस अपनाना है। तो मेरे लिए वो एक चेंज हुआ, शिफ्ट, कि मेहनत तो उतनी करूंगा मैं, लेकिन किसी गोल के लिए नहीं, किसी किसी चीज के पीछे भागने के लिए नहीं, बस वहां पहुंचने के लिए और उस जर्नी को एंजॉय करने के लिए। तो इस वजह से वो चीज थोड़ी शिफ्ट हुई है। बट बाकी आपने भी तो ले ही लिया है। और एक और चीज था जिस वजह से मैंने चेंज किया, ये एमटीवी हसल जो आ गया था, उन्होंने भी सेम टैगलाइन यूज करी, जबकि मेरा कॉपीराइट है इसका, मेरे पास सारे कॉपीराइट है, बट उन्होंने यूज कर लिया। लेकिन मैंने कहा ठीक है, रैप का ही शो है, तो आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग द आर्टिस्ट वट एवर इट इज, सो I दैट्स व्हाई। always credit you because I always say in the interactions I've had with you, you have very clear perspective. You have a perspective and you're also really या deep. So hustle ke hustle is for any one of us. We are all struggling in our own ways. But I want to ask you, somewhere there is a similarity, I would say, between Neil's journey and yours also in यस। making your mark in an industry, finding your feet. And as you said, how tough have the 4 years been actually, because यहाँ पर as you also said यहाँ दोस्तियां is only till the time then you're doing a film, फिर वो सब speed dial change हो जाता है. So how tough is it really for a rank newcomer, now you're no longer one, who's come from the other side, very humble and sorted beginnings, making it in showbiz, yeah? I think I would not blame anything but the pandemic. I think I was very well received even though I was an outsider. बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, यशराज के साथ काम कर लिया, धर्मा के साथ काम कर लिया, एक्सेल के साथ काम कर लिया, आते ही इतना वार्म वेलकम मिला है, जो कि आई थिंक शायद ही किसी आउटसाइडर के साथ हुआ था उस 20 साल में। जी. दीपिका, आलिया, कटरीना, ऑल दीज बिग पीपल आई वर्क विद। तो ऐसा नहीं था कि इंडस्ट्री से रिसेप्शन नहीं था, बहुत ज्यादा प्यार दिया। दे उन्होंने टैलेंट पहचाना, उन्होंने डेडिकेशन या जो हासिल है वो उन्होंने पहचाना, एंड बहुत दे वेलकम इट।
प्रॉब्लम क्या हो गया ना, एक सडन कंज्यूमर में शिफ्ट आ गया, एक कुछ ऐसी चीज हो गई पैंडेमिक के टाइम जो हमको समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सिनेमाज अचानक बंद हो गए, जो फिल्में मैंने साइन की थी पैंडेमिक के पहले वो सडनली इरेलेवेंट हो गई, नया कंटेंट आने लगा, लोग एडिक्टेड हो गए फोन से, ओटीटी से, सारा गेम बदल गया अचानक रातों रात। और मैं जस्ट 2019 में आया था, 2020 में ये हो गया। डेफिनेटली इससे भी और बहुत बुरी चीजें हुई हैं, बहुत लोग, पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि मैं मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ ज्यादा हुआ है, बट कहीं ना कहीं मैं एक बैकफुट पे आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। क्योंकि जिस तरह की फिल्में जो चल रही थी, केजीएफ, पुष्पा, या जो बिग प्लेयर्स जो क्या कर रहे थे, तो उतने पैसे आपके न्यू कमर पे कोई डाल नहीं रहा। तो रोम कॉम्स बनना बंद हो गए, ये जो चीजें जो होती थी मिड बजट फिल्में, वो थोड़ा बैकफुट पे चली गई। तो वो बड़ा मुश्किल रहा है समझना मुझे, और वो इसीलिए वो एक साल मैंने लिया भी कि मैं समझूं कि कैसे इसको मनूवर करना है। और इसीलिए आई नीडेड दैट ब्रेक। बट एज एन आउटसाइडर आई थिंक वो चीजें है मुश्किल, तो डेफिनेटली है आपके लिए, बिकॉज आपको किसी चीज का पता नहीं होता, पीआर क्या होता है, कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी जैसी जैसी फिल्में आ रही हैं मैं सीख रहा हूँ कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ओ हो, अच्छा ऐसी इसीलिए वो लिखा गया, अच्छा ओ। तो ये बहुत सारी चीजें मेरी आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। ये सब चीजों में मैं विश्वास करता नहीं था या समझ में मुझे आती नहीं थी, अब मुझे धीरे धीरे आई एम बीइंग अवेयर ऑफ कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे। Yes, it is art and it is craft and everything, but it is the basic of it is very commercial. Everything is commerce here, which I have to now scratch my brains to my CA side and I have to like ठीक है, एक सेकंड, पढ़ाई तो मैंने वो भी बहुत ज्यादा की है, तो रुको अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है मुझे कैसे करना है ये चीजें। तो धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन कोई बताने वाला है नहीं ना आसपास, ना मेरे माँ बाप इस इंडस्ट्री के हैं ना कोई है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है पहुंचने में वहां पे। लेकिन एज लॉन्ग एज यू वर्किंग गुड एंड you're disciplined, and if people around you really believe in you, which all my producers and my directors have till now, I think then it's all right. There's nothing, nobody to blame but the situation or the incidents or the natural calamities which happen. Absolutely. Absolutely. As you said, it's all about imaging, and competition Yeah. is very tough. So, is there Yeah. a strategy? What do you think is now going to be the, because you have each time proved that you are a fabulous actor, and it's not, I'm not saying that I'm interviewing you. I had my brother who mentioned, he said, oh, this Siddhant Chatruvedi is a very brilliant guy. Then I had a friend who said, oh, he's a very brilliant actor. That perception of you is there. Nothing's going to change that. But now for Siddhant, who knows Mm. that the audience likes him, but is in an industry that itna competition hai, har din ek naya, as you said, narratives have changed. Is there a strategy in place, or are you just going with the flow? I don't have a short term strategy. मेरा विजन बहुत लॉन्ग टर्म है। ये बहुत हर एक चीज इस इंडस्ट्री में, चाहे लाइफ में भी, आई वुड से रैंडम होती है। Yeah. फिर हाँ, डेफिनेटली हम उस चीजों को जोड़ जोड़ के, कड़ियां जोड़ के बाद में बोलते हैं कि यार इट वाज बिकॉज ऑफ माय चॉइस दैट इट हैपेंड, बट आई फील एवरीथिंग इज सो रैंडम इन लाइफ। यहाँ पे भी उतार चढ़ाव इतना रैंडमनेस है। तो यू कैन नॉट प्लान दैट, यू हैव टू नो वेयर यू आर गोइंग, एज लॉन्ग एज यू नो कि अच्छा मेरा दूर का गोल वो है। बीच में पत्थर आएंगे, सीढ़ियां ऊपर नीचे होंगी, रास्ते बदल जाएंगे, बट पहुंचना मुझे वहां है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और मेरा वो विजन बहुत ज्यादा क्लियर है कि हाँ वहां पहुंचना। कैसे पहुंचना है, यस, पहले पहले मुझे लगता था अच्छा मैं ये करूंगा, जब शुरू शुरू में आता ये करूंगा वो करूंगा, और आपको बहुत लोग बताते भी हैं आपके एजेंट्स और ये वो, ऐसा करो, पर मुझे समझ में आया कि ये सबसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो आप जर्नी को किल कर रहे हो। आप उस मतलब आपका विजन ये हो गया ना कि मतलब इतना दूरदृष्टि आपकी खत्म हो गई है, आपकी दृष्टि नीचे है, और उसी में आप इतने बिजी हो कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो कि आपके आसपास चीजें क्या हो रही हैं, आप सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो जाते हो। आप बड़े ऐसे हो जाते हो कि अरे अच्छा आज मैं देख क्यों नहीं रहा हूँ, ये पैप वीडियोस में मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। मेरे बारे में कुछ लिखो, आर्टिकल लिखो, कुछ रूमर बनाओ, कुछ मैं रेलेवेंट बनना चाहता हूँ, रेलेवेंट। So just struggle to be relevant ना is what it is actually, which is misguiding. I struggle to be rare. मुझे rare बनना है, मुझे relevant नहीं बनना है। And that's what I believe कि relevance आएगा जाएगा, हर कोई स्टार है, हर कोई फेमस है। इंस्टाग्राम पे, चाहे रील्स पे, चाहे मीम्स पे, लोग स्टार बन जाते हैं फिर गिर जाते हैं, हर साल कोई नया आता है। बट जो रेयरिटी है ना, आप में कुछ एक जो बात होती है, वो चीज मैं आई चेज दैट रादर देन बीइंग टुडे। कि नहीं दिखूं एक साल ठीक है, 2 साल नहीं दिखूं कोई बात नहीं, लेकिन जब आऊंगा तो ऐसे आऊंगा कि लगेगा कि अरे यार ये कहाँ था। सो दैट इज व्हाट आई बात को बिलीव देख के ये लगा कहाँ थे तुम। एनीवेज वी मेट फॉर फोन बूथ एंड आई पर्सनली एंजॉयड द फिल्म, बट
What are the kind of roles and narratives now do you really want to do now going forward? Comedy कर ली, but and that's true. बड़े stars के साथ you've done a dark film like a गहराइयाँ also. Now Yeah. you've given us the rabbit hole of social media. Now what does Siddhant Yeah. Chatruvedi need to do? What do I want to do? देखिए, मेरे choices अगर आपको समझ में आया होगा, अभी तक इतने random होते हैं ना। कभी ये नहीं होता कि यार ऐसा कुछ प्ले करूं जो काफी करीब है मुझसे। हमेशा मैं अपने से दूर चीजें छूता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, इट आल्सो हेल्प्स मी ग्रो। मेरे पास जो चीजें हैं, मतलब जैसा मैं हूँ, उसको मैं बचाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा अपने दूर वाले किरदार पकड़ता हूँ। बट आई थिंक अब वो टाइम आ गया कि आई थिंक आई थिंक बहुत ज्यादा जो मैं बिलीव करता हूँ या जो रिलेटेबिलिटी लेके आता हूँ, आई थिंक आई नीड टू नाउ यूज दैट मोर in the next coming years. I want to be, you know, connect. I want to connect to people on a very relatable level. अब मुझे लगता है कि I'm letting myself lose a little bit. I will choose characters which are still like a little closer to me, and let's see what happens in that. It might work, might not work, might be boring for me, or might be boring for the audience to see that. But I want to try doing that. रही बात किस किस्म के किरदार और किस किस्म की फिल्म है, तो वो डिपेंड करता है स्क्रिप्ट पे। वो डिपेंड करता है कि कैसे वो कहानी बोली जा रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है। हाँ, एक मेरा पैशन प्रोजेक्ट है जो कि मैं बहुत समय से मना रहा हूँ कि वो हो जाए। वो है युवराज सिंह की बायोपिक। मैं चाहता हूँ कि वो मैं करूँ, और युवराज सर ने बोला भी था शुरू शुरू में गली बॉय के बाद की एक इंटरव्यू में कि आई वुड लाइक सिद्धांत टू प्ले इट। और क्योंकि उनकी माँ ने कहा था कि मेरा भी पुत्र शेर है, ये भी शेर है, तो वो तब से वो चीज मेरे पे अटक गई। एंड दैट्स वन ऑफ माय ड्रीम रोल्स एक्चुअली इन द रीसेंट टाइम्स। अगर मैं कुछ 5 साल का प्लान बनाऊं, उसमें मुझे युवराज सिंह सर की बायोपिक तो 100% करनी है। तो एक मेरा ये गोल है। बाकी आसपास जो चीजें हैं, आई वांट टू डू मोर ऑफ रोम कॉम्स, मुझे लगता है, क्योंकि प्यार की परिभाषा जो थोड़ी थोड़ी, ये जैसे खो गए हम का फिर भी रियलिटी चेक है। हाँ, बट ऐसी चीजें जो थोड़ी होपफुल होती है, जो शाहरुख सर लेके आए थे कि एक होप होता है कि ऐसा कोई राज हो, ऐसी कोई सिमरन हो, तो उस किस्म के रोल्स या उस किस्म की कहानियां भी मुझे कहनी है कि हम एक्शन तो चल ही रहा है इंडस्ट्री में, बट एक थोड़ी सी यू नो रोम कॉम किस्म की कहानियां, तो आई थिंक वो भी मैं इंक्लाइंड हूँ करने के लिए। तो I have my fingers crossed for that. I'm rooting for you for that. So, describe yourself as an actor in one word, if I would ask. डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एक्टर इन वन वर्ड। एक सेंटेंस यूज कर सकता हूँ rather than हाँ, वर्ड, बताइए। तो बेटर होगा। एक्चुअली चलिए आपके लिए वर्ड ही कर लेता हूँ, इफ डॉट 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 इफ। My But as since we were talking about social media, and you said you also realized it also through perception, because how influencers, like my job is being done by influencers, and I totally got what your character was saying. What was the one thing that you learned after you finished the film about being an actor in this industry where everything is a hashtag, a reel, a meme, and kitne posts जा रहे हैं, collaborations. यार मैं मतलब वो फिल्मों की जरूरत नहीं है उसके लिए, सीखने के लिए। वो तो हाल ही जिंदगी में पता ही चल जाता है चीजें। व्हाट डिड आई लर्न अबाउट? नथिंग एक्चुअली। आई नेवर टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम फिल्म्स। मैं इन फिल्म्स से इंस्पायर्ड होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं Oh, बचपन में हुआ करता था। Yeah, I don't get inspired for films because I think there's something, there's more beyond that. There are people, there are real people, experiences, athletes, आपके माँ बाप, बिजनेसमैन। रास्ते पे चले जाइए, आपको वैसी कहानियां मिलेंगी और ऐसी इंस्पायरिंग मिलेंगी। फिल्म्स क्या होता है ना कि और एक सस्पेंशन ऑफ बिलीफ होता है। 2-3 घंटे में उसको देख के आपको लगता है कि अरे क्या मजा आ गया। आप 4 दिन तक उसके बारे में सोचेंगे, 5वें दिन से आप फिर वही चीजें करेंगे। जैसे अगर मैंने रॉकी देखी थी, तो मुझे लगा मैं सिल्वेस्टर जैसी बॉडी बनाऊंगा, 4 दिन भागा हूँ सुबह उठ के, 5वें दिन से नहीं भागा। जैसे इस फिल्म के बाद भी आपको लगेगा कि पांच, हाँ यार मैं सोशल मीडिया थोड़ा कम कर दूं, इन्होंने तो सच्चाई दिखा दिया, आईना दिखा दिया। नहीं, आप तीसरे दिन से फिर वही करेंगे। तो फिल्म का जो इम्पैक्ट होता है वो लास्टिंग होता नहीं है। तो इसीलिए इवन दो माई कैरेक्टर्स वट एवर दे आर गुड बैड वट एवर, मैं फिल्म से चीजें लेता नहीं हूँ। आई थिंक देर आर बुक्स, देर आर स्टोरीज, देर आर रियल पीपल। मेरे माँ बाप हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो ज्यादा मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बिकॉज वो रियल लोग हैं। और absolutely. वहीं से लेके मैं फिल्म में थोड़ा उसको उतारने की कोशिश करता हूँ। बट फिल्म से मैं इंस्पायर्ड नहीं होता, क्योंकि फिर अगर मैं इंस्पायर्ड होने लगा अपनी फिल्म से, तो मुझे तो कैसे कितने किरदार करने हैं जिंदगी में, तो फिर तो मैं बचूंगा ही नहीं ना। मैं हर जगह मेरे थॉट्स बदलते रहेंगे, मेरा मोल्ड होता रहेगा सब कुछ। फिर ऐसा नहीं हो कि मैं घर आऊं एक दिन 5-10 साल बाद और मेरे माँ बाप मुझे पहचाने ही नहीं। तो
quick fan questions. Are you on Tinder, and what does your Tinder bio say? Your female fan Uh, therapist. I'm so so disappointed after this interview. I'm so boring. Actually, I'm not on Tinder. I've never been on Tinder because I couldn't ever crack a bio. मैं इतना कुछ लिखता हूँ सिटी चैट्स पे, पोएट्री लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, वो लिखता हूँ. मैं कभी बायो ही नहीं क्रैक कर पाया अपना. मुझे लगा यार कैसा क्या लिखूं. पहले पोएट्री लिखी मैंने, फिर कुछ मैंने बोला बड़ा चीजी लग रहा है, फिर मैंने कुछ स्मार्ट विटी लिखा, बट मैंने मुझे लगा कि यार ये तो मैं हूं ही नहीं. मतलब कैसे क्या, हाउ डू आई डिफाइन माई सेल्फ, बिकॉज इवन आई डोंट नो हाउ डू आई टेल यू अगर मुझे डिफाइन करना हो. इसीलिए तो मैंने लगा if is such a abstract word as an actor to get ki if I was this, if I was that, if this doesn't happen then that will happen. So I could never crack a bio ever, so that's why I was never on Tinder. मेरे दोस्तों ने बनाया था, मैंने कोशिश की थी, बट थोड़ी 5-10 मिनट के लिए मैच नहीं हुआ तो मेरा ईगो हर्ट हो गया. तो मैंने Oh. Acha, are you anything like Imad as a boyfriend? And what would it take to win Siddhant's heart? am I like no, you not want him as नहीं 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 नहीं. I'm nothing like Imad as a boyfriend. I'm very private. I'm well. There are some parts, to be honest, which I can. I like walking, taking those long walks on streets under the moonlight. I like playing music and just two of us dancing in our living room. Um, I like y- being involved in what she's doing, her work. So bits and parts of it, yes, I do like. So I'm a bit a part of it. But I think my way of being a boyfriend is way too, I think it's a deeper connect, I would say. हम बातें करते हैं, बैठते हैं, शोर शराबे से दूर, शांति में, पिक्चरें देखेंगे, कहानियां सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, कुछ वो अपना बताएगी, कुछ मैं अपना बताऊंगा. तो वो कनेक्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. One truth and one lie about the industry. Okay, that you'll find your friends here, and wait, let me only decide if that is true or not. एक second, इसमें time लूंगा. One truth and one lie. Mm, mm, that everybody hopes the best for you, and people do recognize talent in the end. Up for us to guess which is the truth, which is the lie. What are your interests, Siddhant? We're saying, if not working, if not writing, what ideally would Siddhant Chatruvedi like to do when he's not on set reading scripts, calling up people? What is like? I like um, I like playing. I like cricket. मैं अभी सुबह सुबह खेल के आ रहा हूँ. मैं भोपाल में शूट कर रहा था अपनी फिल्म को, अपने क्रू को लेके गया था. आज हमारा ऑफ डे था. तो क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ. अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलना बहुत पसंद है. फीफा हो गया या फिर प्ले स्टेशन में गेमिंग मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है. गेमिंग आई डू on when I have even whenever I have a free time I game. I play the guitar. I make music. I jam with my musician friends and I make music and make songs. That I really like. So I think these three things I love. फिलहाल क्या शूट कर रहे हो, बता सकते हो? क्या सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल? यार ये तो मैं प्रोड्यूसर पे छोड़ूंगा. पता नहीं अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं. इतना टाइम हो गया फिल्म खत्म होने आ गई. आई थिंक नहीं, बट होपफुली जनवरी में अनाउंस करेंगे. इट्स अ बिग बिग फिल्म. इट्स अ बिग अनाउंसमेंट एंड आई बीन शूटिंग इन भोपाल फॉर द लास्ट 2 months. एंड yes, I think my producer will I think announce it, and we're planning something really good for the announcement as well. So yeah, but it's a very exciting. I mean, it's one of my favorite scripts. I must tell you, and this will connect to in not only India but Bharat. It's very rooted and it's very straight from the heart. It's talking about now, like for example, Kho Gaye is still about like a little niche, and it talks about the urban first world. This is not the first world problems. This film is talking about जो हमारी mass जनता है. And yeah, so I'm very very excited about this film as well. Again, a very hard part. So yeah, I would leave it. अब मुझे आप ऐसे पूछेंगे तो सब बता दूंगा. मैं बहुत excited हूँ.
लेकिन I leave it up to my producer to announce it. I'm looking forward to that. All the very best. May Thank you. 2024 shine, and may Siddhant never be खोया हुआ in the crowd. And आपकी सारी fans ये पूछना चाहती है, is he single or taken? यार ये वाला मैं कंफर्टेबल नहीं होता ये Fans बताने है में अपना यार, बता रिलेशन। दो। नहीं मतलब ये प्राइवेट है, मतलब आपको आपको जो आपके मन हिसाब से आपको खुश रखे आप वो सोच All the लीजिए। girls, you still have hope. So anyway, all the very best. Happy New थैंक यू। Year. May the New Year be bright, and I hope to meet you in person very soon. Happy New Year to you too, and keep hustling and till we meet the next time. I know, but thank you for And giving I me that. hope you keep the. Now it's all yours. Now it's all yours. बड़ा क्रेडिट यू। आपका तो है रिस्क में इश्क, वो भी एक पिक्चर में ही था, रिस्क है तो इश्क। But keep hustling, keep taking the risk, and Thank keep you. shining. Yeah? And once more, many congratulations, because I think Thank you, Imad was Pooja. the scene stealer. Bye. Thank you It's so much. always a delight to talk to you, by the way. I Thank always you. love our conversations. Thank you so much. And I hope to see you in person. Yeah. अभी ये Yes. Bye. Take हाँ care. हाँ करेंगे बहुत जल्दी, जनवरी में करते हैं, बैठते हैं कभी। मिलते हैं फिर चाय और गुफ्तगू। डन। ठीक बिल्कुल। है। Bye. Thanks. Yeah. Bye. Thank you. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.